Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 10th. Our subject is English and today we will be discussing your chapter 5th which is the hero or a hero. Okay, so before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home and must be using the sanitizer and mask. I hope that all of you must be liking these online sessions and must be doing your assignments day by day. Okay, so if we talk about this chapter, this is a coincidence, or I don't know why I have been watching a series of R.K. Narayan Malgudi days. These days in the, you can say, the lockdown period, I have watched most of his stories. Okay, it is available on YouTube. So this is one of the story which I've already read, or you can say that I have seen the video. If you also want to, you can do that. So the chapter is about a boy whose name is Swami and he is afraid. Why? He is afraid to sleep in the darkness. उसको क्या होता है, उसको डर लगता है अकेले सोने में डार्कनेस में. नाउ एक दिन क्या होता है, ही इज़ मिस्टेकन टू बी अ hero who desperate act leads to the imprisonment of the most notorious thief of the area. क्या होता है, वन डे उसके पेरेंट्स कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं दैट समवन हैज़ डन समथिंग वेरी ब्रेव. किसी बच्चे ने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है. तो क्या बोलते हैं उसे, स्वामी को, कि देखो बेटा इसने कितना बड़ा काम किया है. ठीक है, तो ये बच्चा जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो और तुम तो सिर्फ अंधेरे में सोने से ही डरते हो. उसकी दादी, उसकी मम्मा उसको बहुत प्यार करती थी बट उसको अकेले सोने नहीं देती थी. उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था. नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे उसके फादर ने उसे अकेले सोने के लिए कहा कि आज तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा. सो ही सेड ओके. ही वॉज वेरी मच स्कैर्ड बट फाइनली क्या हुआ, वो सोने को रेडी हुआ. When he slept at night, at the midnight, the thief, who was the most notorious thief of the village, he came to stole the things. वो चोर आया उनके घर पे रात को. तो उसने क्या किया, वो उसी रूम में सोया हुआ था तो उसने उस चोर को कैच कर लिया. और उसके बाद क्या हुआ, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया उस चोर को, और स्वामी का नाम फिर न्यूज़पेपर में छपा. सो व्हाट हैपेंड दैट how he overcome his fear and how he actually changed himself. So this is the story that how, taking inspiration from someone else, he himself became the hero, or you can say he became the hero or a hero. So let us begin, but before starting, keep a pencil in your hand and keep your book in front of you so that you will get a better understanding, because the pictures here are only for the reference. The clarity is not that much, but if you really want to study and you want to connect to me, keep a book in front of you. Always keep your book in front of you. So let us begin now. Yeah. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. News is to hand the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. This is what I was telling you. सो फॉर स्वामी इवेंट्स टुक अनएक्सपेक्टेड टर्न्स. ठीक है, स्वामी के लिए क्या होती थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती थी लाइफ में जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर अंडर द लैम्प, अंडर द हॉल लैम्प. हॉल में जो उनके लैम्प था उसके नीचे बैठकर उसके फादर क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. देन ही सेड दैट स्वामी लिसन टू दिस. स्वामी मेरी बात सुनो. देखो न्यूज़ में क्या था, द ब्रेवरी ऑफ द विलेज लैड, जो एक लड़का था उनके गाँव का, who while returning home by jungle path came face to face with a tiger. एक लड़का था उनके गांव का जो कि अपने घर वापस आ रहा था, और घर वापस आते समय क्या हुआ, उसका आमना सामना हुआ. ही केम फेस टू फेस विथ अ टाइगर. एक टाइगर के साथ वो फेस टू फेस आ गया. कौन, वो लड़का. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. या as we have learned in you can say no let me remind you that you have ever heard about the Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Why he is called Tipu Sultan? Because he fought with the tiger without any weapon and finally he killed the tiger. That's why he called the tiger of the Mysore. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a
tree where he stayed for half a day till some people came the way and killed the tiger. नाउ ये क्या था, इस जो न्यूज़पेपर में पैराग्राफ था उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि फ़ाइट जो कि बॉय की हुई थी किसके साथ में, टाइगर के साथ में. एंड वॉट हैपन्ड, ही यू कैन से सेव्ड हिमसेल्फ, ही स्टेड ऑन द ट्री फॉर हाफ अ डे. और फिर क्या हुआ, कुछ लोग आए और उस टाइगर को मार दिया. तो उसने किस तरीके से खुद की जान बचाई इस बारे में वो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था. ओके. After reading it through, father looked at Swami fixedly and asked, "What do you have to say?" Swami said, "I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy." Now what he's saying, उसके फादर ने पूछा उसकी तरफ देखकर, जैसे कभी कभी पेरेंट्स हमारी तरफ टकटकी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जब एग्जाम रिजल्ट्स आए होंगे 12th के 10th के, सो योर फादर मदर मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द टॉपर्स. दे मस्ट ऑल्सो हैव बीन हैविंग द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि मेरा बेटा भी कल इस जगह, मेरे बेटे की भी पिक्चर होगी. तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ उसके फादर ने उसकी तरफ देखा. एंड ही आस्क्ड दैट व्हाट डू यू हैव टू से, तुमको क्या कहना है. तो स्वामी ने क्या कहा, दैट ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन पर्सन. वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लड़का होगा. और वो लड़का तो नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगा. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, किस तरीके से कोई लड़का कैसे टाइगर के साथ फाइट कर सकता है. दिस इज वॉट दे आर टॉकिंग. ओके. या, you think you are wiser than the newspaper. Now what his father is saying, you think you are wiser than the newspaper, तुम्हें क्या लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो. Father sneered, a man may have the strength of an elephant and yet to be coward. Okay, now his father in a taunting way, एक taunt देते हैं कभी कभी, जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें देते हैं और भी लोग हमें देते हैं, पेरेंट्स के अलावा भी. पेरेंट्स तो टॉन्ट देके बट फिर भी हमें मना लेते हैं, बट लोगों की बातें हमें कितनी चुभ जाती हैं वो लोग नहीं समझ पाते. इन द सेम वे हिज फादर टॉन्टेड हिम दैट अ मैन कैन हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ एलिफेंट एंड येट टू बी अ कावर्ड. एक आदमी के पास, एक इंसान के पास एक एलिफेंट की जितनी ताकत भी हो सकती है और वो एक कावर्ड, जिसको हम कहते हैं ना कि डरा हुआ इंसान जो होता है, जो कि छिप जाता है, जो कि हमेशा डरा हुआ रहता है, वो वैसा भी हो सकता है. Whereas another may have the strength of a consumptive. Okay, consumptive. ओके, और क्या हो सकता है, अनादर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव. क्या हो सकता है, किसी को टीबी की बीमारी भी हो सकती है, बट इफ ही हैज़ करेज ही कैन डू एनीथिंग. किसी को टीबी भी हो सकता है, बट अगर उसके मन में दृढ़ निश्चय हो, वो दृढ़ता से कोई भी काम करना चाहता हो, तो वो कोई भी चीज़ कर सकता है. ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स इफ़ ही हैज़ दैट मच फेथ एंड करेज इन हिम. ओके, अगर उसके अंदर फेथ है और करेज है. करेज, एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. तो क्या समझा रहे उसे कि एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी उम्र इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्या इम्पॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, आपकी स्ट्रेंथ. ओके, आपकी स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, आप किस तरीके से उस सिचुएशन को लड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट बॉय सेव्ड हिमसेल्फ बाय स्टेइंग ऑन द ट्री फॉर हाफ अ डे. अगर डरा हुआ होता तो टाइगर उसको उसी टाइम मार देता, बट उसने अपनी बहादुरी दिखाई, अपनी चतुराई दिखाई. ओके. Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? Now what Swami is, you can say, is debating with his father. कि father ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसी थ्योरी कैसे हो सकती है आपकी. अगर आप कह रहे हैं कि इंसान में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर फादर, अगर हमारे सामने टाइगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, और वो हम पे अटैक करने वाला होगा तो हम क्या करेंगे. ओके, तो दिस इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन. ओके, जैसे आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ में कन्वर्सेशन करते हैं. एंड टुडेज जनरेशन इज़ वेरी मच फ्रैंक विद देयर पेरेंट्स. अभी पुराना ज़माना तो बिल्कुल चला गया है. नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद आवर पेरेंट्स. Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you sleep along tonight in my office room. Now this is exactly where the actual story starts. Now what he's saying,
चलो सब बातें छोड़ो, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात भी छोड़ो, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम में करेज है? कौन बोल रहा है? स्वामीज फादर इज आस्किंग हिम, जस्ट टेल मी दैट आर यू हैविंग दैट मच करेज, लेट मी सी, मैं देखता हूँ, क्या तुम मेरे ऑफिस के रूम में रात को सो सकते हो, अकेले रात को सो सकते हो? A frightful proposition. Swami, though, had always slept beside his granny in the passage, and any change in the arrangement kept him trembling एंड अवेक ऑल द नाइट्स. क्या होता था, स्वामी एक बहुत ही डरी हुई सिचुएशन में आ गया, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रैनी. ग्रैनी मतलब होता है दादी, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ के पास ही सोता था. और अगर कोई भी चेंज होता है उसके सोने में, उसके अरेंजमेंट में, तो पूरी रात डर से कांपता रहता था और सो नहीं पाता था. ओके, दिस इज वॉट इज हैपनिंग हियर. नाउ वॉट इज हैपनिंग, दैट हिज फादर इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक हिम bold and smart and courage. He's trying to give him the courage. Okay, yeah. He hoped at first that his father was joking. He mumbled weakly yes and tried to change the subject. Now what happened, उसे क्या लगा कि उसके फादर क्या कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं. कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ मस्ती करते हैं ना, हमारी फिरकी लेते हैं, तो उससे क्या लगा, दैट हिज फादर मस्ट बी जोकिंग. और उसने मम्बल्ड, बिल्कुल छोटे स्वर में, आप इसको कहते हैं बिल्कुल धीमे स्वर में, कभी कभी हम आंसर नहीं कर पाते ना हमारे पेरेंट्स को, बट ही मम्बल्ड, ही सेड येस, बिल्कुल छोटी सी आवाज़ में, बिल्कुल धीरे से. और क्या किया, सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करी, बिकॉज उसे लगा कि ये मेरे फादर मस्ट नॉट हैव बीन सीरियस, मेरे फादर सीरियस नहीं हैं, और क्या कर रहे हैं, वो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं. ओके, या ओके. He said very loudly with a great deal of enthusiasm, yeah, we are going to admit even our elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain had asked me to tell you. Okay, now what he is trying, he mumbled weakly yes and tried to change the subject. Okay, उसने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करी. he said with loudly and with great deal of enthusiasm, और बहुत enthusiasm और happiness के साथ उसने क्या कहा कि हमारे बड़े हमें क्रिकेट क्लब में एडमिट करवाने वाले हैं. ओके, और हम क्या कर रहे हैं, ब्रांड न्यू बैट्स और बॉल्स खरीद लें, और हमारे कैप्टन ने ये बात मुझे आपको बताने के लिए कही है. ओके, नाउ ही इज़ ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक. जैसे कभी कभी हम लोग भी बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हमारे पेरेंट्स के सामने हम टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट पेरेंट्स फिर से हमें उस टॉपिक पे ले आते हैं. So this is what actually happens. This is not something which is fictional. Okay, this is reality. This we can all see around us. I hope you got it till here. Yeah, let's move forward now. Okay, just give me a sec. Yeah, we'll see about it later. Father cut in. You must sleep along hereafter. Now what his father is saying, बेटा बाद में देखेंगे, अभी रुको, आपको क्या करना है, आपको सोना है आज. Swami realized that the matter had gone beyond his control. Now he came to know that his father was not joking. He was serious because he wanted him to be brave. और वो क्या सोच रहा था, that his father must be joking, but his father was serious now. उसने क्या किया, बात चेंज करने की कोशिश करी, बट उसके फादर उसे फिर उसी बात पर ले आया और क्या कहा, पहले तुमको यहाँ सोना पड़ेगा, बाद में हम कोई और बात सोचेंगे. ओके, और उससे ये पता चला कि अब जो है बात उसके कंट्रोल से बाहर चली गई है. फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ plain command. He knew his father's tenacity at such moments. और वो क्या कहता है कि उसके फादर के डिटर्मिनेशन का उसको बहुत अच्छे से पता है, और ये क्या, उसके फादर ने उसके सामने एक चैलेंज रखा है. क्या रखा है, चैलेंज, कि आपको ये चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ही इज एक्चुअली नाउ अंडरस्टैंडिंग द, यू कैन से द, क्या कहते हैं उसे बेटा, the actual situation, or you can say the seriousness of the situation. He is actually understanding that. Now we will move on to the next page. Yeah, from the 1st of next month I'll sleep alone. Father अब क्या कह रहा है, नहीं पापा आज नहीं, आज नहीं. From the 1st of the next month, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सो जाऊंगा पापा. Now he is not ready to sleep alone because he is very much scared. वो कैसा है बेटा, वो डरा हुआ है, because he hadn't slept like this. Okay, अपनी लाइफ में कभी नहीं सोया है. नो, यू मस्ट डू इट नाउ. नहीं, तुम्हें ये अभी ही करना पड़ेगा.
इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। क्या बोल रहे हो उसके फादर की ये बहुत डिसग्रेसफुल है, जिस तरीके से आप अपनी दादी के पास, अपनी मम्मा के पास एक बच्चे की तरह से होते हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। ओके, एंड यू शुड बिहेव लाइक अ ग्रोन अप पर्सन। क्या बोला उसे कि आपको एक ग्रोन अप पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी मच डिसग्रेसफुल। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और मुझे ये जो तरीका है जिससे आपको बड़ा किया जा रहा है, जिससे आपको पाला पोसा जा रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये तरीका। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, ओके, हु वॉज रॉकिंग द क्रैडल। ठीक है, जो उन्होंने ये बात बोल के अपनी वाइफ की तरफ देखा। बेटा कई बार हमारे जो घर में भाई बहन होते हैं या हम खुद भी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से। सो क्या होता है, हम अपने डर से कभी जीत ही नहीं पाते, एंड ऑल द टाइम वी स्टे इन दैट फियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फियर इज़ दैट मैं झूले में नहीं बैठ सकती, आई कैन नॉट सिट इन द स्विंग, बिकॉज मेरा क्या होता है, वो सर में जो चक्कर सा आता है एंड जो वो butterflies in stomach that happen, so I cannot take that, even I cannot go on a height से भी मुझे डर लगता है। so ये सब fears क्या होते हैं बेटा, जब हम pampered होते हैं हम कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हम उसी तरीके से जीते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है। बट अगर हम खुद को चैलेंज करें तो हम कोई भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं। ओके, या Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. Now what his wife is saying कि आप मेरी तरफ देख के ये बात क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है इस लड़के के बारे में कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि वो उसे नहीं जानती है, इसका मतलब ये है that he has been born and brought up by his grandmother। उसकी grandmother उसकी सब चीज़ों का ध्यान रखती है, मदर इतना ध्यान नहीं रखती है। ओके, no, I don't mean you, father said. If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. Okay. क्या बोला उसके फादर ने उसकी वाइफ को, उसकी मतलब स्वामी की मदर को क्या बोला कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, और उसकी वाइफ ने क्या जवाब दिया, अगर तुम्हारा ये मतलब था तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी मदर जो है वो उसको क्या कर रही है, स्पॉइल कर रही है, इसको क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। ओके, एंड टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी। क्या बोला, तो उन्हें जाके कहो, मुझे मत कहो, ना मेरी तरफ देखो। शी सेड एंड टर्न्ड अवे। ओके, क्या होता है, उन्होंने ऐसा कहा और वो मुड़ गई, बिकॉज शी इज फीलिंग एंग्री दैट वाई हिज फादर इज टेलिंग हिम so many bad things. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on the lap. He prayed that his father might lift the newspaper once again to face so that he might slip away to the bed and fall asleep before he could call again. Now what Swami is trying, he is trying क्या हुआ, अब उसके फादर ने पेपर पढ़ के अपनी लैप पे रख दिया। Now what Swami is praying, हे भगवान मेरे पापा फिर से न्यूज़पेपर की तरफ देखे एक बार और मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं सोने चला जाऊँ। ओके, और फिर जब तक वो उसको बुलाएंगे वो सो चुका होगा। दिस इज़ वॉट स्वामी इज थिंकिंग। स्वामी फादर सेड gloomily gazing at the newspaper on the lap. He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to the bed and fall asleep before he could be called again. Yes. As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face, and Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. और क्या हुआ, उसकी प्रेयर के अकॉर्डिंग ही जो स्वामी के फादर हैं उन्होंने फिर से न्यूज़पेपर की तरफ देखा और स्वामी वहाँ से टिपटो बिल्कुल दबे पाँव वहाँ से कहाँ चल गया, अपने बेड पर चला गया, ताकि जब उसे उसके फादर फिर से बुलाएं तो वो आ ही ना पाए। ओके, सी दिस इज हाउ द स्मार्टनेस इज वर्किंग हियर। Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Do you want a story?" Swami made wild gesticulation to silence to his granny. Okay, gesticulation का मतलब क्या होता है बेटा, हम जेस्चर बनाते हैं ना, हम जब हमें हाँ करना होता है तो हम हाँ में नॉड करते हैं, ना करना होता है तो ना करते हैं, किसी को चुप करना होता है तो हम कैसे अपनी फिंगर का यूज़ करते हैं, हम फिंगर को लिप पे लगा लेते हैं कि नाउ बी साइलेंट, प्लीज़ बी साइलेंट। सो दिस इज गेस्टिकुलेशन। ओके, so when he went back to his grandmother was sitting in the bed, वो बेड पर ही बैठी थी और क्या कहा कि बेटा तुम्हें नींद आ रही है,
क्या तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी आज? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन टू साइलेंस हिज ग्रैनी। आप क्या बोल रहे हैं कि स्वामी ने कैसा जेस्चर बनाया ताकि वो अपनी आई को या अपनी ग्रैंड माँ को चुप करवा सके, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्लीप साइलेंटली एंड ही डिडेंट वॉन्टेड दैट हिज फादर शुड नो दैट वेयर ही इज। ओके, उसके फादर को नहीं पता चलना चाहिए कि वो वहाँ पर है, इसलिए उसने अपनी ग्रानी को चुप कराना चाहा। But that good lady saw nothing, so Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. But Granny ने कुछ नहीं देखा. Okay, she was silent and happy. So स्वामी ने क्या किया, बेड पर लेट गया और अपने फेस पर ब्लैंकेट डाल लिया. हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जब हमारी कोई ज़िद पूरी नहीं होती तो हम इसी तरीके से गुस्सा करते हैं, अपने फेस पर ब्लैंकेट डाल लेते ताकि हमें कोई देखे ना. और अगर हम कभी कभी रो रहे भी होते हैं तो भी हम ऐसा करते हैं. ओके, यस. Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Now what Granny is saying कि अपना फेस कवर मत करो बेटा, क्या तुमको इतनी ज़्यादा नींद आ रही है आज? Swami leant over and whispered, "Please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire." Now what he is saying कि एकदम धीमी आवाज़ में विस्पर करते हुए क्या कहा कि बिल्कुल चुप हो जाओ ग्रानी, बिल्कुल चुप, और मुझसे बात मत करो और मुझे तभी भी मत उठाना जबकि घर में आग लग जाए. Because he was scared that his father would tell him that he will have to sleep in the office. उसे कहाँ सोना पड़ेगा? ऑफिस में सोना पड़ेगा. So he was scared just because of that. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. Okay? अगर मैं नहीं सो पाया एक बार भी तो क्या होगा, या तो मैं मर जाऊंगा. Because he was so scared. Now you can see that how much he was scared. पहले तो उसे ऐसा लगा that his father must be joking, but his father was not at all joking. He was serious. Okay. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. Okay. He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. ओके वो अपने ब्लैंकेट की तरफ मुड़ा, और जिस तरीके से हम भी जब छोटे थे तो बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे, स्नोर करने लगा. स्नोर का मतलब क्या होता है बेटा? खराटे लेने लगते ना हम. ओके, अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड दैट हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे. ओके, और कब तक वो ऐसा करने लगा? जब तक कि उसका ब्लैंकेट किसी ने उठाया नहीं. ओके, या नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Father was standing over him. Swami, get up, he said. Now father was standing. बिल्कुल उसके पास ही उसके फादर खड़े थे. जिस चीज़ का डर था वही हुआ. क्या बोला? स्वामी, get up. स्वामी उठो, he said. He looked like an apparition in the semi darkness of the पैसेज. और वो कैसे लग रहे थे बेटा? एक भूत की तरह लग रहे थे, जो कि क्या कर रहे हैं, एक घोस्ट की तरह लग रहे थे, जो कि सेमी डार्कनेस में उसके सामने खड़े थे, क्योंकि उसके लिए तो वो भूत ही हुए ना. जो चीज़ वो नहीं चाहता है वो उससे करवाना चाह रहे थे. ओके, इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट बाय अ कोन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प. जो कि क्या हो रहा था, थोड़ी बहुत जो लाइट रूम में आ रही थी उसमें ऐसे लग रहा था दैट ही वॉज अ घोस्ट. Swami stirred and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" Now Swami क्या ऐसा behave कर रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नींद में था. Okay, Swami is behaving like he is so much in sleep and he has fallen asleep और उसको उठाओ नहीं अब कोई भी. Okay, so now grandmother is saying that क्यों उसे disturb कर रहे हो, उसे सोने क्यों नहीं देते हो. Okay. "Get up, Swami," he said for the fourth time, and Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." अब क्या होता है, स्वामी के फादर क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि उठो, चलो जल्दी उठो, और क्या करते हैं, जो उसका बेड है उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं. Swami looked at the granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. और स्वामी क्या करता है, अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखता है बहुत ही दुखी आंखों से और अपने फादर को फॉलो करता है उनके ऑफिस रूम तक. Okay students, so today we will be reading till here only. This is such a beautiful story. If you really want, you can watch it out on the YouTube. The beautiful story Malgudi Days. The whole series is full of stories written by R.K. Narayan, a very 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 famous writer of his time. So this was your class for today. I hope that you liked the class. Now what you will do, there is not much to do, but you will write down all the important words. Okay, yeah, write all important words and their meanings. All important words लिखने हैं and
उनके मीनिंग लिखने हैं आपको. ओके, या सो दिस इज़ योर assignment for today. I hope you like the class and understood well because I have explained it to you in a very easy way. ठीक है, बहुत easy way में मैंने आपको सब कुछ explain किया है. So then till the next class starts, you will take care of yourself. You will complete all the assignments. और क्या करेंगे बेटा, हम अपनी स्टोरी पहले ही पढ़ लेंगे, मैम के पढ़ाने से पहले ही हम अपनी स्टोरी पढ़ लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं. So till then, thank you so much students again for attending this class. I hope that all of you will stay safe and fine at your home. Thank you again.